وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، یہ دیوبندیوں کا ایک جو ہے قاری ہے جس کا نام ہے قاری رسادی فسادی، یہ شاید لکھنؤ کا رہنے والا ہے شاید، مگر یہ بتاتا نہیں ہے کہاں کا ہے کیا نہیں ہے، اور اس سے میری گفتگو ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کس طرح زبان درازی کر رہا ہے، کس طرح جو ہے بدتمیز بول رہا ہے۔ پوری گفتگو میں اس نے کتنی بدتمیزی کی ہے آپ شروع سے لے کے لاسٹ تک دیکھیں، اس کی گفتگو کو سنیں۔ یہ دیوبندی اپنے مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، دیوبندیوں کے مدرسے میں اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت میں دیوبندیوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، اس بندے کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس گفتگو کو شروع سے لے کے پورا سنیں لاسٹ تک اور پھر فیصلہ کریں کہ دیوبندی دھرم کے لوگ کتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں، کتنی بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی شان میں بھی بہت سی گستاخیاں کی ہیں، اور مجھے بھی غلط سلط بولا ہے، پر مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یہ گالی بکے کیا کرے کیا نہیں، مگر کم سے کم جتنی دیر مجھے گالی بکے گا اتنی دیر ہمارے بزرگوں کی شان میں بکواس کرنا تو روکے گا نا، بند کرے گا نا۔ بس بہرحال یہ لوگ بزرگان دین کو برا بھلا کہتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ خیر، آپ حضرات اس پوری گفتگو کو سنیں اور فیصلہ کریں کہ ان دیوبندیوں کی جماعت کیسی جماعت ہے، کیسی بدتمیزیاں سکھاتے ہیں ان دیوبندیوں کے مدرسے میں۔ آئیے سنیے گفتگو، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ حافظ۔ ہلو ہلو، جی، رسادی جی بول رہے ہیں؟ جی اچھا، اس دن تو آپ کال کاٹ کے بھاگ گئے تھے اور پھر اس کے بعد میں اجگر دیوبندی کو لے کے آئے۔ کل میں نے اجگر دیوبندی کی دھلائی کی ہے اور خود ہی اپنی رضا لعنتی منحوس جو جھوٹ بول گیا وہی جھوٹ بولو گے تم۔ یہ جھوٹ بولنا، احمق رضا کی سنتیں کو زندہ کب تک کرو گے تم لوگ؟ بدتمیزی بالکل نہیں۔ کال کاٹ کر تم بھاگے تھے، احمق رضا بھاگا تھا، نقی علی بھاگا تھا، اعظم علی، کاظم علی، حسین رضا، حامد رضا، مصطفیٰ رضا۔ میں جانتا ہوں بدتمیز بولنا یہ دیوبندیوں کی فطرت ہے۔ سنو، آئندہ جھوٹ بولو گے تو احمق رضا بریلوی کی پھر سوچ لینا میں کیا کہوں گا، اس لیے سچ بولو، سچ میں بولو۔ جانتا ہوں دیوبندیوں کی فطرت ہے بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ پیار محبت ہے، پھول ملاتے ہی جھوٹ بول رہا کہ کال کٹ کر کے رسادی بھاگتا ہے۔ ارے بھائی محبت ہے، بھاگے تھے نا کال کاٹ کے؟ ہاں اللہ کی قسم، محبت سے جھوٹ بول رہے، ہاں اللہ کی قسم کہ میں فون کاٹ کے نہیں بھاگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھاؤ کہ اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ جو قسم میں بتاتا ہوں، یہ قسم کھاؤ کہ اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ تم بولو کہ خدا کی قسم میں نے فون نہیں کاٹا تھا۔ منحوس دجال احمق رضا کی سنتوں کو زندہ کرنے والا منحوس دیکھ بولتا ہے۔ رسادی بھائی، کسی موضوع پہ کسی موضوع پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اچھا چل موضوع چن، تو کسی موضوع پہ کیوں نہیں بات کرتا؟ چن موضوع چن، کس موضوع پہ بات کرے گا؟ اچھا، سنا ہے یہ کہ 15 سال تک تو دیوبندی رہا ہے۔ ارے یار وہ تو میں رہا ہوں یا نہیں رہا ہوں وہ چھوڑ دے، تو موضوع چن۔ اتنا میں پوچھ اتنا بتائیے، موضوع چن، اتنا بتا، موضوع چن، موضوع اتنا میں بتاؤں گا۔ موضوع یہی ہے کہ 15 سال پہلے یہ کوئی موضوع نہیں ہے، تو اپنے عقیدے کا کوئی موضوع چن، یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ بتا نا تو، یعنی تو پہلے دیوبندی تھا یا نہیں تھا، اتنا بتا بس۔
मैं देवबंदियों में फंस गया था और वो भी धोखे में, अनजाने में। देवबंदी था ना, फंस गया, चल कैसे भी था ना। हाँ मैं गया हूँ, देवबंदियों में रहा हूँ, 15 साल से ज्यादा जिंदगी देवबंदियों में गुजरी है। था या नहीं था इतना बता। मैंने बोला ना, हाँ था ना, मैं रहा हूँ देवबंदियों में, मगर मैंने कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन नहीं की। मैं उस वक्त भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करता रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता रहता था। सुन, और उस वक्त भी मैं दुआ करता था, या अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार आलम, तू मुझे इस दिन सिरातुल मुस्तकीम पर चला। पहले बात को सुन ले तो पूरा, ठीक है? तो पहले बात को सुन पूरा। हाँ, मैं उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अपने रब से दुआ करता था, ए मेरे मौला परवरदिगार आलम, ये आए दिन इख्तिलाफात झगड़ा होता रहता है, मुझे उस रास्ते पर चला जो बुजुर्गाने दीन का है, वलियों का रास्ता है, जिस रास्ते पर वली चले हैं, ठीक है? और यहाँ तक के हमारे यहाँ फातिहा होती है जुमरात को, ठीक है? जो इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं तो उनके ये एहसाले सवाब होता है, ठीक है? नमाज में फातिहा होती है, क्या कहा? एक मिनट, क्या जुमेरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि पीर और जुमेरात को मुर्दे अपने घरों पर आते हैं, हदीस है ना? हदीस है ये हदीस है। हाँ बिल्कुल हदीस है, झूठ बिल्कुल हदीस है। इंशाल्लाह मैं पूरा हवाला दूंगा। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बुहतान आज रजा खान जी बिल्कुल, हाँ नबी से इतनी दुश्मनी नबी से कि तुम। अच्छा, मैं अगर साबित ना करूं तब उसके बाद सब कुछ कहना, ठीक है? मैं अगर साबित ना कर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बुजुर्गों की रूह है, मरने वालों की रूह हैं, उनके घरों पर आती हैं। हाँ ठीक है, अरे बिल्कुल मैं साबित करूंगा। अब तू ये बता, एक मिनट, हदीस का नाम तो बता। बताऊंगा इंशाल्लाह। अब तू ये बता ना, तुरंत बता ना। पहले बात को सुन, तू बात, अरे हदीस आती है या नहीं आती है, बस तू इतना बता, हाँ या ना में जवाब दे। अरे जब तू कह रहा है मरने वालों की रूह है, हदीस बता रहा है, हदीस बता। अरे बिल्कुल बताऊंगा। में है, मुस्लिम में, तिरमिजी में, इब्ने माजा में, अबू दाऊद में, किसमें है? अरे बिल्कुल बताऊंगा। पहले तो मुझे ये जवाब दे, आती है या नहीं आती है, और ये हुजूर की हदीस है या नहीं है? किस हदीस में है? प्यार मोहब्बत से बगैर घबराए बात कर, बगैर घबराए। हैं करने की जरूरत नहीं है, या नूर हसन से बात कर रहा है तू? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान, कैसे इसने नबी पर आज झूठ बोल दिया? हुजूर ने फरमाया है या नहीं फरमाया? हाँ ना में जवाब दे। बरेलवी ने झूठ बोला था नबी पाक। देखो ये हदीस नहीं बता रहा है, किस हदीस में है ये नहीं बता सकता। वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो सकती है, जहर का प्याला पी सकती है, फांसी के फंदे पर लटक सकती है, जहर का डर नहीं, 7 समंदर भी मुमकिन अगर मान लिया जाए, लेकिन हदीस नहीं बता सकती। अच्छा, तो यानी नहीं है, ऐसे करके मानते रहे अकीदे में नहीं है, हैं करने की जरूरत नहीं है। तू बता दे फटाफट। अगर इसको ये चाहिए कि अगर हदीस नहीं है तो ये मानने तैयार हूँ, मैं तुरंत मान लूंगा, क्योंकि नबी की बात आएगी तुम मान या मत मान, तुझे इल्म नहीं है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बात आती है, ईमान वालों की शान यही, नबी की बात आ जाए फिर किसी की बात नहीं चलेगी, तुरंत मान लूंगा मैं। हाँ या ना में बता। नबी की होगी मैं फौरन मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे इल्म नहीं है तो तुझे इल्म नहीं है, तुझे अगर इल्म नहीं है तो मैं क्या करूँ? तूने इनकार किया। अब मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हदीस है या नहीं है? हुजूर की हदीस नहीं बताएगा तू फासिक। मैं ऐसे बात ही नहीं करता हूँ, तू अभी मुझे जाना नहीं है। बयान करेगा, मैं हवाला पूछूंगा, अगर तू नहीं बता पाएगा मैं नहीं मानूंगा। कुरान में तुझे मालूम नहीं है, कुरान में है उसूल, बेशक हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूल, कोई झूठी बात अगर तू बयान करेगा मैं मानूंगा, तो नबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हम कोई बात झूठी पेश नहीं करते, अभी तूने बात नहीं लगाते। अभी तूने कहा है कि नबी ने फरमाया कि रूहें, बुजुर्गों की रूहें घर पे आती हैं, तूने अभी बताया तो हाँ, मरने वालों की रूह है, तो अगर हदीस बताएगा मैं मान लूंगा, अगर नहीं बताएगा मैं नहीं मानूंगा। बता। अब तू सुन ले, बता। हाँ सुना, बता। ये रसूल पाक की हदीस है या नहीं? अगर तुझे नहीं मालूम है, हदीस नहीं बता रहा, हदीस नहीं बता रहा, फिर वही बात। तू तो बता, तेरा ये अकीदा है या नहीं है? बात सुन, मेरी बात सुनेगा नहीं? पहले मेरी बात बता, तेरा ये अकीदा है या नहीं है कि बुजुर्ग अपने कहन से सुन बात।
अरे हदीस पाक से भी साबित करूंगा, तेरे घर से भी साबित करूंगा, टेंशन क्यों लेता है? चल नूर हसन को देख, सुन, नूर हसन से बात करना कोई आसान बात नहीं है। मैं तभी कहता हूँ बगैर घबराए बात किया करो, तसल्ली से बात किया करो, ठहर ठहर के बात किया करो। तू मुझे अब ये बता कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मालूम है तुझे कि नहीं है? अच्छा हदीस तूने जो हदीस है, मैं ये साबित करूंगा कि ये हदीस है और हुजूर का फरमान है। मैं मान लूंगा, बात खत्म। तू हदीस बता, मैं मान लूंगा, बात खत्म। चल, जब तुझे नहीं मालूम है, जब इल्म नहीं है, तो तूने ये कैसे कहा कि तूने झूठ बोल दिया, हुजूर की तरफ झूठ मंसूब किया? ये तूने कैसे कहा? इसने हदीस बयान की। जब कोई बात कोई बयान करे, कोई मुद्दई कोई दावा करे, तो दलील उससे मांगी जाएगी। तो कहता तुम बताओ कि है या नहीं। ये देखो, अच्छा बुजुर्गों की रूहें, अच्छा बुजुर्गों की रूहें अपने घर आती हैं या नहीं आती है? नहीं बता। अरे वो छोड़ दे, पहले इसी पर रहे। छोड़ूंगा नहीं, अहमद रजा पर मैं लानत भेजूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूँ देवबंदी, देवबंदी बता, तू पहले देवबंदी। मैं इसी तरह से मैं देख, अदब से अगर बात करें तो मैं अदब से बात करूंगा। अगर मैंने तुझे अभी तक कोई बदतमीजी बोली, मैं तो तुझसे शुरू से कह रहा हूँ कि अदब से बात कर, प्यार मोहब्बत से। मैं अदब से पूछ रहा हूँ। पहले नूर हसन साहब, आप पहले देवबंदी, पहले ये रूहों के ताल्लुक से तू बात कर ले भाई। वो देखो, बुजुर्गों की रूहें अपने घर आती हैं या नहीं आती हैं? अहमद रजा खबर पर लानत इसीलिए होती है, झूठ बोलेगा तो इसलिए लानत, उस पे लानत कर। अच्छा तू किसी एक मौजूद पे टिक के बात करेगा या नहीं करेगा ये बता? इसलिए मैं लानत भेजूंगा अभी। तू एक मौजूद पे टिक के बात करेगा या नहीं करेगा ये बता? हदीस बताया है नहीं बताया है? बता। अरे मैं सब साबित करूंगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उधर मत जा। रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, रिकॉर्ड हो रही है। ड्राइवर एक हदीस बताया है और जुबैर रसादी दलील पूछ रहा है, किस हदीस में नहीं बता पा रहा नूर हसन। मालूम है ना नूर हसन कैसे बात करता है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के हदीस तो है ही है, मगर मैं देवबंदियों के घर से भी ये साबित करूंगा कि देवबंदियों की रूह है नहीं, बल्कि वो खुद ही जिंदा उठ के आ जाते हैं, मिसले जिंदा के, जिस और रूह के साथ आ जाते हैं। एलवी पर लानत हो, नबी पे लानत हो, उसके बाप पर लानत हो। देख फोन काट के आज मत भागना, अल्लाह की लानत हो उस पर जो फोन काट के भागे, अल्लाह की लानत हो उस पर जो फोन काट के भागे। रजा खानी लानत, आमीन बोल आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। चल ठीक है, अब मुझे ये बता। अरे यार फिर वही बात, पता ना, फटाफट बता। तो था पहले देवबंदी? मैं देवबंदियों में 15 साल से ज्यादा रहा हूँ और मुझे देवबंदियों की हकीकत कभी नहीं पता कि देवबंदी होते क्या है या नहीं था। तो पहले मैं देवबंदियों में सुन मैंने बोला ना कि मेरी जिंदगी 15 साल से ज्यादा देवबंद गया हूँ, मैं देवबंदियों में रहा हूँ, मैं देवबंद गया हूँ, मैं देवबंदी से मिला हूँ, ये कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता, मैंने ये कब कहा कि मैं देवबंद गया हूँ? सुन, तूने एक झूठ मेरी तरफ और बांधा, था या नहीं था ये बता बस। देख ना तो उधर बात कर पाएगा ना इधर बात कर पाएगा। सुन ना तो ला हौला वला कुव्वत, ना तो उधर बात कर पाएगा ना इधर बात कर पाएगा। अपने वो स्टेटस पे लिखता है कि मैं पहले इतने साल देवबंदियों में था, ये लिखा है कि मैं पहले देवबंदियों में था। मतलब तो देवबंदी नहीं था? मैं नहीं था देवबंदी, मुझे मालूम ही नहीं कि ये देवबंदी होती कौन सी बला है। आज ये खुद कह रहा है कि ये देवबंदी नहीं था, इसलिए ये देवबंदी होती कौन सी बला है? मैं देवबंदियों में रह चुका हूँ। इसने झूठ बोल कर रजा खान इसको डुबोया है, क्योंकि अहमद रजा बजरी पर पढ़ो लानत हो। सुन देवबंदी होना एक अलग चीज है। देवबंदियों में के लिए जाते थे, वहाँ उसने झूठ बोला, वही ये ड्राइवर इसने 6,000 ये नौकर रजा खानी चेला, ये ड्राइवर है, ट्रक से चलाने वाला, उसको धुलने वाला, पहिए को साफ करने वाला, के भागना ये आया है दिफा करने अपने मकसद का। ये ड्राइवर को तुझे मैं ड्राइवर अल्लाह की लानत हो पर ड्राइवर की जरूरत होगी तो मैं ईमान वाले ड्राइवर को रखूंगा ना, तुझे मैं ड्राइवर के लिए नहीं रखूंगा। अच्छा ये बक करने की कौन सी आदत है? रजा पर तूने लानत भेजी है झूठ बोलकर, क्यों? तूने पहले तो तूने नबी पर झूठ बोला, नंबर 1। अच्छा तू किसी मौजू पर रुक के बात क्यों नहीं करता? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस किसी मौजू पर रुक के बात क्यों नहीं कर रहा है? इधर उधर बात में हदीस सुन, किसी मौजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी मौजू पर रुक के बात क्यों नहीं कर रहा? सुअर की औलाद, किसी मौजू पर रुक के बात कर, हराम के पिल्ले, किसी मौजू पर रुक के बात कर, चला जा रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई झूठी बात हमारी तरफ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम। बेशक सुभान अल्लाह। झूठी बात मंसूब की अपना ठिकाना जहन्नम बना। तुझे कैसे पता कि मैंने हुजूर की तरफ झूठ माना है? तुझे कैसे पता? तूने उस हदीस का इनकार कर दिया, लिहाजा तूने उस हदीस का इनकार कर दिया।
तेरे बड़े बड़े लोगों ने अहमद रजा ने झूठ बोला है हदीस पर। ला हौला वला चल, कुव्वत मेरा इल्ला दावा बिल्लाह। है, मेरा ये दावा है कि अहमद रजा बरेलवी ने नबी पर झूठ बोला है। देख रहे हैं जनाब, ये वो देख देव रहे का हैं बंदा जनाब, है, देव मेरा का ये पुजारी दावा है, इस दावे जो पर, कुत्ते की तरह इस दावे भौंके पर चला जा कौन रहा रजाखानी है। बात करेगा? इस दावे पर कौन सा रजाखानी लानती मनहूस बात करेगा? बता। अच्छा यही मेरा तरीका है दावा बात है करने कि का। अहमद अच्छा, तू रजा आलिम है? बरेलवी लानती ने, मैं आलिम है? अहमद रजा पर लानत भेजूंगा। तू आलिम है? तू ड्राइवर, अच्छा, तेरी तू- ड्राइवर की मैं- ऐसी की तैसी। अरे तू आलिम है? आलिम है तू? क्या यही तरीका है देवबंदी आलिमों का बात करने का? तेरे बड़े बड़े सुन, अहमद रजा बरेलवी आलिम था, अच्छा, देवबंदी अहमद आलिमों रजा का बरेलवी आलिम था, तू बता अहमद क्या रजा बरेलवी देवबंदी आलिम आलिमों था, का? अहमद ला रजा हौला लानती वला। आलिम था, भौंक अहमद भौंक रजा कितना लानती भौंकेगा? आलिम था, भौंक भौंक कितना अहमद रजा भौंकेगा? लानती आलिम था, तू बता क्या थे वो? नकी अली आलिम था, तू बता क्या थे? आजम अली और आजम अली ये सब आलिम थे। बता। तू बता मुस्तफा रजा आलिम थे, हसनैन रजा आलिम थे, हामिद रजा आलिम थे, तू बता क्या हसनैनी थे? आलिम है, सईद असद आलिम है, अशरफ दयालवी आलिम है। बता तू बता क्या है? फटाफट, तू बोल क्यों नहीं रहा? बता। तू बता। ये लोग आलिम तुझे हैं। पता नहीं चला मेरा बात करने का मैं किस तरह बात करता हूँ? तू ड्राइवर है, 5,000 करने की जरूरत नहीं है, है करने की जरूरत नहीं है। तू बता ईमान को कितने रुपए में बेचा है? बता। तेरी अम्मा के निकाह के बदले में मैंने बेचा है। ये देखो, तेरी अम्मा से ये निकाह है क्या था? जबान, उसी ये नुस्खे है से तू पैदा जबान हुआ है। रजाखानियों की, ये है जबान मैं रजाखानियों सही की। कह रहा हूँ ना, तू हराम का नुस्खा है। ये बात ये बात क्या? लोग देख रहे हैं तू कितना भौंक रहा है। तू बुजुर्गों की शान में तौहीन कर रहा है। मेरा वो दावा आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है। लानती मनहूस ने नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर झूठी हदीस मंसूब की है। ये मेरा दावा है। बेगैरत लोगों को इस इज्जत दावे पर, बेगैरत लोगों को इज्जत का क्या मालूम कि इज्जत होती क्या है? बर्रे सगीर पर कोई ऐसा हलाली रजाखानी नहीं है जो मेरे इस दावे पर बात कर सके। अच्छा तू मैं मुझसे बात कर जानता कहाँ हूं रहा कि न है? खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। तू बता, इस बात दावे कर पर ही कहाँ करेगा है? नहीं? लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह। बता, तू इस दावे पर बात करना है तुझे या नहीं? रूहों के आने पर भी तू बता, भागा। इस दावे पर फिर बात करना है या नहीं? लोग रूहों- सुन लेंगे, रिकॉर्ड हो रही है, तुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इंशाल्लाह लोग सुनेंगे। लोग तू रूहों रिकॉर्ड के सुन लेंगे, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। बता, इस दावे पर बात करेगा या नहीं? जल्दी रूहों जल्दी के- बता, बात करना है इस दावे पर या नहीं करना है? मेरी बात को क्यों बात नहीं सुनता है करना जरा है ये इस बता। दावे पर या नहीं करना है? मेरी जल्दी बात को बोल, मैं सुनता क्यों नहीं है तू? ड्राइवरों की, मेरी बात को कम सुनता इल्मों क्यों की, नहीं है तू? जाहिलों की बात सुनने का आदी नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मनहूस आवाज सुनने को पसंद नहीं करता। अरे जल्दी तो बता, जलील इस क्यों दावे हो पर रहा बात है? करना फिर जलील क्यों हो रहा है? अरे जलील क्यों हो रिकॉर्ड रहा है? सुनेंगे फिर लोग। बिल्कुल लोग इंशाल्लाह सब रिकॉर्ड में सुनेंगे। सुनेंगे। बता जल्दी, तू बता बता जल्दी, कौन बता। इन दोनों में से बता, कौन से बता, मौजूद पर बता, बात बता, करेगा? बता, बता। बुजुर्गों अहमद रजा- की जो रूहें घर पे आती हैं इसके ताल्लुक से बात करेगा अहमद या रजा फिर? लानत, इस पे तूने हदीस बता, कौन सी हदीस में है ये बात? अरे मैं हदीस भी पेश करूंगा मगर बता ऐसे ना। पेश नहीं करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ। अभी तू मुझे जानता नहीं है कि नूर हसन चल, कैसे दलील करता है तू बोल देवबंदियों ले, को। तू बोल ले, फिर मैं बोलूंगा। चल ठीक है, बोल। तू ये बता बुजुर्गों की रूहें पहले बता, घर जब मैं आती बोलूंगा हैं तो या बीच में नहीं तो आती बोलेगा हैं? ना? जब मैं और बोलूंगा तब तू बीच में तो नहीं बोलेगा? मैं बोलता कब हूँ? मैं तो चुप जाता हूँ ना। तू नहीं जिस बोलेगा तरह- ना? जिस तरह तू बीच बात में जो बोलेगा, बीच में तो नहीं बोलेगा। बता, तू झूठ चल, बोल बोल ले देगा। तू। देख तू तू झूठ बोल। बोले या कुछ भी बोले मैं तू बाद में ही लानती बोलूंगा। मनहूस अहमद रजा पर लानत भेज। अहमद रजा पर अभी लानत भेज। अच्छा ये बदतमीजी क्यों कर रहा है? तो जरा ये तू बता। अहमद रजा खुद बदतमीज था, उसका बाप बदतमीज, उसका दादा अच्छा, बदतमीज, ये बता, उसका दादा देवबंदी धर्म में सब यही सिखाया अहमद जाता है, रजा की ये पूरी बता। नस्ल बदतमीज है। तू बता। जमातों में देवबंदियों के मदरसों में यही सिखाया जाता है, ये अहमद बता। रजा बरेलवी लानती की यही ऐसे ही जबान थी। वो नबी पर झूठ बोल दे गया, अल्लाह पर उसने तोहमत लगा दी, दुनिया अल्लाह को देवबंदियत में गालियां बक दिया। दुनिया रजा खानियत में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो अदब के दायरे में बिल्कुल दलाइल की रोशनी में जुबैर रसादी के सामने बात कर सके। वो तो तेरे इंशाल्लाह जैसे पता नहीं, कम से कम 70 से 80 तेरे जैसे तुझसे बेहतर है वो रजा खानी, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अहले सुन्नत वल जमाअत अहनाफ देवबंद में है। बिहम्दिल्लाह मैं वल्लाह ये बात कहता हूँ। लेकिन तेरे जैसे ड्राइवर जो है, तेरे तुझसे बेहतर मेरे दुकान पर मुलाजिम है। किसी की 12,000 सैलरी, किसी की 15,000 सैलरी, किसी की 18,000, लास्ट है 22,000। इंशाल्लाह तेरा खड़ा हुआ चेहरा भी तेरे वीडियो पे लगाऊंगा इंशाल्लाह। 4,000 पर नौकरी करने वाले लानती मनहूस ड्राइवर, तू आ गया मुझसे बात करने के लिए मनहूस। कॉल काट के जाना नहीं, करके भागेगा रजा खानी कॉल काट लानती। करके जाना नहीं। जितना तू गाली बकना हो, बुरा भला कहना हो, सब कुछ कहे, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ, मैं मालूम है ना मुझे देवबंदी धर्म की बुनियादी झूठ पर टिकी हुई है। झूठ ना बोले, अहमद रजा झूठ ना बोले धर्म नहीं चलेगा। लानत भेजूंगा मैं लानत भेजता हूँ मेरे बरेलवी। बता क्या करेगा? बता, अब बता तू रूहों के घर आने पर बहस करेगा? किस हदीस में है ये बात? बता।
अरे मैं हदीस भी साबित करूंगा, हर एक चीज साबित करूंगा इंशाल्लाह। तू पहले ये बता कि बुजुर्ग अपने घर आते हैं या नहीं आते हैं, उनकी रूहें आती हैं या जिस्म के साथ भी आते हैं? हदीस में है, बता किस हदीस में है, बता किस हदीस में है, बता ना किस फिर हदीस में, वही बात, फिर वही बात। बता किस हदीस में है, तुझे अभी तक नहीं मालूम, तुझे अभी तक नहीं मालूम। बता किस हदीस में है रजा खानी? लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। जब मैं अच्छा, तू बता बोल किस रहा था हदीस मैं में? खामोश था, मगर अब मेरा बोलने का वक्त आया है तो तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है। लोग सब इंशाल्लाह सब सुन लेंगे कि कौन बता किस हदीस में है, झूठी हदीस मंसूब करा, बता किस हदीस में, बता फटाफट। तू अपना अकीदा बता, बता रूहें किस घर हदीस आती में हैं या है? नहीं आती हैं? अच्छा, मेरा ये दावा अगर है रूहें कि घर नहीं आ अहमद सकती तो रजा इंसान जिस्म के साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकता। मनहूस ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु कितना बोलेगा अलैहि यार, वसल्लम कितना पर बोलेगा? एक क्यों अपने झूठी धर्म को हदीस जलील कर रहा है? और जो नबी पर झूठी हदीस मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हेलो, फोन काट कर भाग गए, अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुमने कहा था आमीन आमीन, मैंने तुमसे आमीन कहलवाया था कि जो फोन काट के भागेगा अल्लाह की उस पर लानत हो। तुमने कहा था आमीन, अब तुम पर ही अल्लाह की लानत हो गई और तुमने साबित कर दिया कि तुम भगोड़े हो और बात को नहीं सुनते हो। खैर, फिर वही मौजू पे आओ कि रूहें घर आती हैं या नहीं। भागना मत फोन काट के अब, ठीक है? बताओ, घर पे रूहें आती है या नहीं? रूहें नहीं आ सकती तो इंसान मिसले जिंदा के भी घर नहीं आ सकता, जिस्म और जिस्मानियात के साथ नहीं आ सकता, पूरा जाहिरी जिस्म के साथ नहीं आ सकता। हेलो जी, जवाब दें। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि मैं जो है आपको बदतमीज बोलूं या आपको गाली बकूं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आप जवाब दीजिए, भागे क्यों आप? कॉल कट करके भागना ये देवबंदियों की फितरत है, देवबंदियों की अलामत है, देवबंदियों की पहचान है। झूठ बोलना, मक्कारी करना, दगाबाजी करना, ये सब देवबंदी धर्म में लाजमी है, शर्त है। अगर देवबंदी लोग झूठ ना बोलें, मक्कारी ना करें, धर्म नहीं चलेगा। जल्दी बताएं जनाब, फोन काट के क्यों भागे आप? आपने कहा था कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो फोन काट के भागे। बहरहाल आपने साबित कर दिया कि देवबंदी धर्म के लोगों पर अल्लाह की लानत हो रही है, लानत बरस रही है। बोले जनाब, मुंह में क्या भर गया है? हेलो हेलो, मुंह में क्या बरेली शरीफ का बांस भर गया क्या? क्यों सऊदिया के रियाल की तरह मेरी सब बातें खाए चले जा रहे हो? बोलो ना यार। देखिए जनाब, मैंने इनसे कहा था कि जो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, विसाल कर जाते। जी जनाब, क्यों आप भाग रहे हो? गए। जी जनाब, कॉल काट के क्यों भाग रहे हो, जरा मुझे ये तो बता दो। ये बताओ कि अहमद रजा खान लानती मनहूस ने जो झूठ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोला है, बिल्कुल ये सिलसिला रजा खानी आज तक जारी रखे हैं कि वो भी झूठ बोल कर अपने मसलब को बचाते हैं। ठीक है, अदब के दायरे में अगर बात करना है मैं तो अदब से कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले एक सवाल किया था कि मैं तो अदब से बात कर रहा हूँ जनाब, मैं तो आपको बदतमीजी से नहीं बोल रहा की तरह, पूरे मुतखल्लल की तरह बीच में न बोले। जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है? तो ये तो शर्त आपने निभाई नहीं। मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया था कि भाई आपने कहा कि मैं 15 साल तक देवबंदी में रह चुका हूँ। देवबंदी में रह चुका हूँ ना, देवबंदी तो नहीं था ना, देवबंदी तो नहीं बना था। सुन सुन सुन, देवबंदी में अनजाने में रहना, सुन सुन, देवबंदियों में तो होता है ना, जब मैं बोलूंगा, जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर आप बोलना, बस अदब से बात होगी। इस शर्त पक्का रहेगा? जी बिल्कुल, हम लोग शराइत पे ही बात करने वाले लोग हैं। चल ठीक, मैंने तो नहीं देखा कि तू शराइत पे बात करता है। तूने कभी शराइत पे बात की है कभी? तूने देखो, तूने और तेरे अहमद रजा को कहना, अहमद रजा की खबर पर मर्जी हो तो पेशाब करना। अगर आप बदतमीजी तू तेरे करोगे तो फिर जानते हो मुझे, तू नवाब है क्या? कैसे लाने दे दूंगा? तू नवाब है क्या? तू बोलना बदतमीजी है? अच्छा, मतलब तू तेरे से बात करेगा, फिर कहेगा मैं अदब से बात करता हूँ। तुझे तू बोलना बदतमीजी है क्या? क्या है फिर अदब से? अच्छा, अहमद रजा को मैं तू बोलता हूँ। तो सुन, मैं अहमद रजा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोला गया माज़अल्लाह के जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाग रहा है? नहीं, ये मौजू से भागना नहीं है, तेरी पहचान करा देना, तेरी औकात दिखा देना मेरी आदत है। अच्छा, देवबंदी धर्म की औकात दिखाना मेरी आदत है। मैंने तुझे तू बोला, लानती बरेलवियों ने
और तू बदतमीजी कब्र बिल्कुल अहमद रजा नहीं। की कब्र पर पेशाब करो जाकर, उसमें हमारा मैंने कोई तुझे तू बोला तो तुझे बुरा लग गया, तेरी बेइज्जती हो गई। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, नकी अली को बाहर निकालो, नकी अली के मुंह में पेशाब करो, अहमद रजा के मुंह में पेशाब करो, अहमद रजा की कब्रों को मुझे मालूम है कि देवबंदी धर्म में बदतमीज बोलना, तो रजा खानी यही अलामत है। जब मैं कहता हूँ कि अहमद रजा के मुंह में पेशाब करवा दूंगा मैं कुत्तों और खिंजीरों सूअरों से, और तेरा मैं जकर को अहमद रजा के मुंह में घुसेड़ कर पेशाब करवा दूंगा। अगर चुप बोल, अगर बीच में मुझसे बदतमीजी किया या काबिरीन अहले सुन्नत वल जमाअत की शान में तूने कोई जुमला कहा, तो अहमद रजा वो जो कलबली खान था, अच्छा तू है कहाँ से जरा बताना, अहमद रजा के मुंह में पेशाब करूंगा कलबली के जरिए। तू है कहाँ से जरा बताना, तेरे बहन का ससुराल कहाँ है बता ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तेरे है कहाँ से, तू पहले ये बता, है कहाँ से? तेरे बहन का ससुराल कहाँ है? तेरी बहन कहाँ रहती? तूने अपनी बहन की शादी कहाँ की है बता ना। रजा खानी लानती मनहूस ड्राइवर साले 4000 रुपये नौकर, बता ना कहाँ किया है बता। मैंने लानती मनहूस बोल सकते हैं बहन की शादी कहाँ की बता। तू देवबंदियों की औकात क्यों दिखा रहा है? तूने पूछा नहीं रजा खानी लानती मनहूस दज्जाल अहमद रजा की कब तेरे जकर को अहमद रजा के मुंह में घुसेड़ूंगा, और कलबली खान के जकर को देवबंदियों के घुसेड़ूंगा, नकी अली के जकर को अहमद रजा के मुंह में घुसेड़ूंगा, काजम अली, आजम अली, हसन रजा, हामिद रजा, मुस्तफा रजा, हाशमी में, अशरफ सियालवी, सईद असदुद्दे, सब के के मुंह में दाखिल करके उसमें पेशाब करवाऊंगा। अच्छा देवबंदियों में यही सिखाते हैं? देवबंदियों में यही सिखाते हैं? अच्छा तूने जमात में जाके यही सिखाया तूने? देवबंदियों के मदरसे में यही सिखाया? जकर को टटोलता रहा, जकर को अहमद रजा की पूरी तहकीक थी जकर पे, इसलिए मैं जकर की बात देख रहे हैं जनाब हजरात, देख रहे हैं जनाब इस ड्राइवर 4000 के नौकर रजा खानी लानती इसने कहा था कि मैं बोलूंगा तो तुम खामोश रहना और तुम बोलोगे तो मैं खामोश रहूंगा। मैंने पहले कहा था देख रहे हैं जनाब हजरात, देख लीजिए ये है देवबंदियों का औकात। अब फैसला आपको करना है कि आपको देवबंदियत कबूल करना है या अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी। ये है देवबंदी धर्म की लानती मनहूस दज्जाल शैतान। अहमद रजा की कब्र पर पेशाब करो, अहमद रजा के मुंह में नकी अली से पेशाब करवाओ, कलबली खान अहमद रजा के पिछवाड़े पे जकर टटोलता था, पिछवाड़ा बताऊंगा पूरी बात अभी उम्मत को, जो इमाम अहमद रजा नंबर में लिखा है। साबित कर देगा तू हलाली है, मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजा तो नहीं है, तो साबित कर। सुन मैं साबित कर रहा हूँ, चुप रहना तू, बिल्कुल बीच में मत बोलना, तेरे मुंह में पेशाब करवा दूंगा कलबली से। सुन साबित कर तू अहमद रजा जितना तू बोल रहा है। जकर के टटोल कर जकर कहते हैं जो मर्द के शर्मगाह देख रहा था क्या उसको कहते हैं। तू देख रहा था कि तेरी दादी देख रही थी? क्यों रे, तू देख रहा था कि तेरी दादी देख रही थी? तेरी दादी के जमाने के होंगे वो, तेरी दादी देखने जाती थी या तेरी दादी नहीं बताया होगा, तू तो था नहीं उस टाइम। मैंने अहमद रजा की किताबें पढ़ी हैं। अच्छा तो मैंने बरेलवी धर्म की किताबें पढ़ी हैं। साबित कर, अगर तू ना माने तो चल साबित कर। अगर हलाली है तो तेरी दादी ने बताया था, तेरी दादी ने पढ़ के बताया था किताब तूने? तेरी बहन ने अहमद रजा का जकल टटोला है ना, इस पर भी दलील मैं दूंगा, दलील दूं। तू इतनी देर से बदतमीजी करे चले जा रहा है। तू बात बहन ने मुझे पता है कि देवबंदी धर्म है कुछ नहीं, सिर्फ बदतमीजी है देवबंदी धर्म में। किए थे अहमद रजा ने 9 जोड़ साबित किए थे, तेरी बहन ने 10 जोड़ साबित किए, इस पर भी दलील है, बरेलवियों की किताबों में लिखा है। बता मैं साबित करूँ? देवबंदी धर्म में झूठ के अलावा बदतमीजी के अलावा कुछ है नहीं, मुझे मालूम है। बरेलवियों की किताबों में लिखा हुआ है, बरेलवियों की किताबों में लिखा हुआ, तो साबित करो अहमद रजा की लानती मनहूस को कब्र से निकालो बाहर, उस पर पेशाब करो, रजा खानी करे। जनाब हजरात, ये शैतान फिर से भाग गया और लायानी गुफ्तगू करके फ़रार हो गया। मैंने इसको कई मरतबा कॉल किया, उठाने के लिए राज़ी नहीं था, बोल नहीं रहा था। बहरहाल इसकी ज़बान आपने देख ली है। देवबंदी धर्म की जो हकीकत है वो क्या है? देवबंदी धर्म की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। देवबंदी धर्म में झूठ ना बोला जाए, मक्कारी ना की जाए तो धर्म नहीं चलेगा। ये लोग अपने धर्म को सिर्फ झूठ के सहारे से लेके चल रहे हैं। अगर ये लोग झूठ ना बोलें, सच्चाई पर आ जाएं, तो एक सेकंड के लिए भी इनका धर्म नहीं चलेगा। ये लोग सिर्फ झूठ पर अपने मज़हब को लेकर चल रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला आपको करना है। मैं इससे अदब एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि शायद ये खामोशी से, प्यार मोहब्बत से बात करे, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिस तरह इसकी बात को सुन रहा हूँ, शायद ये भी मेरी बात को सुने, मगर इसने ऐसा नहीं किया।
बहरहाल ये बदतमीज़ी पर बदतमीज़ी किए चला गया, बदतमीज़ी पर बदतमीज़ी, बदतमीज़ी पर बदतमीज़ी, और यही है इसका नापाक मजरू चेहरा। ये कह रहा है कि मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, ये शैतान का पिल्ला, हराम का पिल्ला, ये मुझे तनख्वाह देगा। बहरहाल इस जैसे शैतान कितने आए और कितने चले गए। इस नापाक देवबंदी का मजरूह चेहरा देख लीजिए। यही है वो खबीसुद्दहर, नज़्द की नाजायज़ पैदावार। ये जो कह रहा है इसके घर पे इतने नौकर रहते हैं, इसकी दुकानों पे इतने नौकर रहते हैं। बहरहाल रहते होंगे तेरे दुकानों पे नौकर, वो और बिकाऊ होंगे जो बिक जाते होंगे तेरी दौलत पर। ये नूर हसन वो है जो मारता है तेरे जैसे को ठोकरों पर। ठीक है, शैतान के बच्चे, लालच देने का कभी भी जो है मेरे ताल्लुक़ से जहन न रखना, वरना तेरी जो नापाक सोच है मैं ठोकरों में मारता हूँ उड़ा के। ठीक है, ठोकरों में उड़ा के मारता हूँ मैं। खैर मुसलमानों, फैसला आपको करना है। और देवबंदी धर्म की जो बदतमीज़ियाँ हैं उसको तो आपने सुन ही लिया होगा, कितना बड़ा बदतमीज़ है, महा बदतमीज़ है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं 15 साल से ज़्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ। देवबंदियों की हकीकत से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। देवबंदियों में ही मैंने पढ़ाई की है। अब ये शैतान का पिल्ला ना तो उधर बात कर रहा था ना इधर बात कर रहा था। बहरहाल मुसलमानों, इसने एक हदीस का भी इनकार किया। अब मैं इससे पूछ रहा था कि वो हदीस है या नहीं है। अगर ये मना करता तब भी फंस रहा था और इकरार करता तब भी फंस रहा था। बहरहाल इसने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ या वो हदीस है या नहीं है। बहरहाल मैं तो इसके घर से हवाला देता। इसके घर के मुर्दे कब्र से उखड़ के ज़िंदा घर वापस आ जाते हैं, मिसले ज़िंदा के, जिस्म और जिस्मानियात के साथ, यानी ज़ाहिरी जिस्म के साथ जो है आ जाते हैं। समझ रहे हैं जनाब, ज़ाहिरी जिस्म के साथ आते हैं। बहरहाल इसने रूहों के आने का इनकार किया। बहरहाल जब इसे नहीं मालूम तो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसको मालूम करना चाहिए कि फौत शुदा इंसानों की रूहें जुमरात को घर आती हैं या नहीं।